Assalamualaikum students, welcome back to Mathematics Point. Today I'm here with chapter 6 Functions and Linear Graphs exercise 6b of your book D1, and today the question that we will do is question 3. So now move towards the book and read out the statement. Okay ji. Question number 3 is on a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis. You have to just underline the important words 1 centimeter and 1 unit. Okay, units means that your scale 1, 2, 3, 4, and 1 centimeter is the distance that you take between one mark to the other mark. And 1 centimeter to represent 2 unit on y-axis. Same is that if I draw the graph, so on y-axis when I take the distance of 1 centimeter, by taking the distance from the scale 1 centimeter, I put the unit 2. Then again taking the distance 1 centimeter, I put the unit 4. So in that way, we have to take the distance of 2 centimeters. 1 centimeter to represent 2 units. These are the two important points that we have to mention when we draw the graph. So what is the first thing that we have to do? We have to just note down the range. The range for the x, that is -4 to 4. So that's means all the numbers between -4 to 4, -4, -3, -2, -1 and 0, then 1, 2, 3, 4. Okay, now it is our own choice that we will take all of the values, and you can also take some of the values. Suppose I'm just taking 3 values. It is good practice to take the extreme values. The extreme values are -4 and 4, and we have to take any one value in the mid. So I will take 0. ठीक है, सो यू कैन टेक एनी वैल्यूज़. आप कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं. एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ज़रूर टच कीजिएगा. एक्सट्रीम वैल्यूज़ ले लें और मिड में से कोई 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू ले लें. ये आपकी अपनी मर्जी होती है. एंड देन आल्सो वी हैव द डिफरेंट फंक्शंस. We have 4 functions of y, and we have to put out the values of x that the range that you will take, and put out the same range in 4 functions. And then on the part B, you have to notice the pattern, what the pattern of the lines will be drawn. Okay, so the first function of question number 3 is y is equal to -2x plus 5. ठीक है, and the range of the x that I select is -4, 0 and 4. ठीक है, आपके पास जो रेंज थी अभी जो हमने -4 से 4 तक लिखी थी, आप कोई भी रेंज ले लें. एक्सट्रीम वैल्यूज़ को टच करें, और इसके अलावा आपने क्या करना होगा, मिड में से वैल्यू लेनी है. सारी वैल्यूज़ ले लें अगर आपके पास टाइम है, लेकिन अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो सारी वैल्यूज़ ना लें, कुछ वैल्यूज़ ले लें. आपके पास पैटर्न वैसे ड्रॉ होता है. फंक्शन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ -2x plus 5. अब हम 1 by 1 करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करके, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट आप लिखें व्हेन x इज इक्वल टू, you have to take the proper start. So here we have the value of x is -4, so you must have to mention it. Then write your function -2x plus 5, then put the value of the function -2. Now we have to put out the value of the x, so you have to use the bracket. अगर आप bracket यूज़ नहीं करेंगे तो -2 -4 तो -6 बन जाएगा. So you must have to use the bracket here, and then you have to put out the value, and the next is plus 5. Now multiply the terms, minus minus plus, 2 4s are 8, 8 plus 5, and your value is 30. ठीक है, same is that. Now when we have x is equal to 0, second value is 0. स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, कैसे पता चलता है. तो आप कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को टच करें. देखें मेरे पास रेंज थी -4 to 4. 2 वैल्यूज़ तो ये होगी एक्सट्रीम वैल्यूज़, और मिड में आप कोई भी एक वैल्यू ले लें. इसके बाद हमारे पास 0 है. सेम फंक्शन को रीराइट करें, और आप इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर दें. -2, अगेन ब्रैकेट यूज़ करें, वैल्यू x की पुट कर दी हमने, मल्टीप्लाई करें. 0 जब भी किसी टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है. 0 plus 5 इज इक्वल टू 5. सो 0 वैल्यू थी तो 5. अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर में भी शक्ल लिखें. आपके पास x की वैल्यू -4 थी, तो हमारे पास y की वैल्यू थी 13. x की वैल्यू हमारे पास 0 थी. पहले ऑर्डर पेयर में x आता है, फिर y आता है. तो फर्स्ट आपने x की वैल्यू को लिखना है, देन आपने y की वैल्यू लिखनी है. ठीक है, 0 पुट किया था तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5. देन नेक्स्ट व्हेन x is equal to 4, so again you have to rewrite your function -2x plus 5. -2x आपके पास 4 है, प्लस 5.
-8 plus 5 and your value is -3. So you have to write down your value here. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के 3 ऑर्डर पेयर आ गए. अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 फंक्शंस हैं. ठीक है, इन 4 फंक्शंस में से हम 3 फंक्शंस यहाँ पे फाइंड करेंगे. एक फंक्शन में छोड़ दूँगी. अगेन एक फंक्शन जो मैं नहीं करवाऊँगी वो पार्ट होगा आप लोगों का आफ्टर प्रैक्टिस. ठीक है, तो हम नेक्स्ट 2 फंक्शंस फाइंड करते हैं पेज में. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे नोट कर लिया. आपके पास एक्स की रेंज जो है वो हमारे पास सेम रहेगी. हमने फर्स्ट पार्ट में जो एक्स की रेंज कंसीडर की थी दैट इज़ -4 0 4. सेम रेंज को हम यूज़ करेंगे -4 0 4. हमने वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. हमारे पास जो रेंज सेम है, इक्वेशंस हमारे पास डिफरेंट है, तो हमने इस इक्वेशंस में वही वैल्यूज़ को पुट आउट करके वैल्यूज़ वाई की फाइंड आउट करनी है. सो अगेन व्हेन एक्स इज इक्वल टू -4, so we have to write down the function of y. Y is equal to -2x plus 3. Again, whenever you have to put out the value, so you use the bracket here, especially in the case of multiplication. So minus minus plus 2 4s are 8 plus 3. Again 8 plus 3 is equal to 50. The same way we have to find out the values of rest of the boxes. So I come in the video again by finding out the values. ओके जी, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी एक्स की वैल्यू पुट करके हमारे पास एक चार्ट ये कंप्लीट हो गया. ऑर्डर पेयर की -4 थी, 15 वैल्यू, 0 थी तो 3 वैल्यू, 4 था तो -5. सेम ही सेट हमने इक्वेशन थर्ड में वैल्यूज़ पुट की. -4 था तो आपके पास ये +4 है. सॉरी, इसको इस तरह लिख देते हैं नीचे. +4 वैल्यू आई, माइनस माइनस प्लस 2 4 से 8 एंड 8 -4 इज इक्वल टू 4. ठीक है, +4 यहाँ पे +4 हो गया. 0 पुट किया तो आपके पास -4 आया. 4 पुट किया तो -12 आपके पास आया. अब इन वैल्यूज़ का हम ग्राफ बनाते हैं. सबसे पहले ग्राफ का स्केल जो बुक में मेंशन था उससे हम स्केलिंग कर लेते हैं. फिर हम वैल्यूज़ पुट करके अपने ग्राफ को कंप्लीट करेंगे कि लाइंस के साथ जो 3 इक्वेशंस हैं इनका आपस में रिलेशन कौन सा है, कौन सा रिलेशन से, पैटर्न क्या है इनका, पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं किस तरह से, और ये पैटर्न हम बताएंगे. पहले हम इसकी स्केलिंग ले लेते हैं. ओके जी, स्केल लेते हुए सबसे पहले आप अपनी चार्ट की वैल्यू चेक कर ले. देखिए मैक्सिमम हमारे पास एक्स की वैल्यू तो -4 to 4 है, जो इस रेंज में हम करेंगे. वाई की वैल्यू हमारे पास +13 है, नहीं पॉजिटिव मैक्सिमम हमारे पास 15 है, और नेगेटिव वैल्यूज़ में हमारे पास 12 है. यानी कि ऊपर के एरिया हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऊपर में 15 तक वैल्यूज़ हैं और नीचे हमारे पास 12 है. स्केल आपके पास जो था, स्केल आप ज़रूर मैंशन करेंगे. हमारे पास 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट हो रही थी एक्स एक्सिस में. वाई एक्सिस में हमारे पास 1 सेंटीमीटर था और हमारे पास 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट हो रही थी. ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम मेंशन कर देते हैं और अपना स्केल लेते हैं. सबसे पहले अगेन जब भी आप डिस्टेंस लेंगे तो सबसे पहले आप अपना स्केल लें और इसमें यूनिट मेजर करें. देखें आपके पास ये सेंटीमीटर में और ये हमारे पास इंचेस में. ठीक है, हमने किससे लेना है, हमने सेंटीमीटर से लेना है. ओरिजिन में अपने 1 के पॉइंट को रखें और 2 तक आप बॉक्सेस काउंट करें कि आपके पास 2 तक कितने बॉक्सेस का डिस्टेंस आ रहा है, ताकि हमें बार बार 1 मार्क स्केल रख के मार्क लगाना पड़े. ठीक है, अब मेरे पास जो बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 बॉक्सेस में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बन रहा है. अब अपने आप को बाउंड ना कर लीजिएगा कि 4 ही होते हैं. देखिए मेरा पेपर ऐसा है, इसका लेआउट ऐसा है. आपकी इस जो बॉक्सेस हैं इनका अगर नैरो होगा तो 5 बॉक्सेस भी बन सकते हैं, तो उसके लेआउट पे डिपेंड करता है. जब भी इनफैक्ट पेपर में जब भी आपको जब शीट ग्राफ पेपर मिलेगा, आपने सबसे पहले उससे स्केल मेजर कर लेना 1 सेंटीमीटर में कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, फिर आप आराम से काम कर सकते हैं. अब 4 बॉक्सेस बन रहे हैं. ओरिजिन यहाँ से जो मेरे पास पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है. यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होंगे. ठीक है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड में होती है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज़. वाई की अपर वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और जो आपके पास लोअर वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं. ठीक है, काउंट करते हैं. बॉक्सेस 4 ले लेते हैं हमने. डिस्टेंस 1 2 3 4, फर्स्ट मार्क. अब देखें आपके पास एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में 1 यूनिट रिप्रेजेंट हो रही है, तो हमने 1 मार्क किया. फिर 1 सेंटीमीटर काउंट करें. 1 2 3 4, यानी कि 4 बॉक्सेस आपके पास 1 सेंटीमीटर थे. फिर आपने नेक्स्ट यूनिट रिप्रेजेंट करनी है, नेक्स्ट 1 यूनिट रिप्रेजेंट करनी है. 1 के बाद क्या आ जाता है 2. फिर इसी तरह 4 बॉक्सेस करके हम 4 तक मूव करेंगे. 1 2 3 4, 1 2 3 4. यहाँ तक हमने 4 बॉक्सेस एक्स एक्स की मेंशन कर दिए. इसी तरह मैं नेगेटिव साइड में भी लूँगी और फिर हम वाई का स्केल लेंगे.
ठीक है, 2 का स्केल लेते हैं। हमारे पास जो था एक्स एक्सिस का हमने स्केल ले लिया, वहाँ पे हमारे पास था कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे तो 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, ये देखिए आपके पास बुक में जो स्केल दिया था 1 सेंटीमीटर में 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस के बाद 2 रिप्रेजेंट किया, फिर आपने लेना है 2 यूनिट्स हो गए 1 2 3 4, फिर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, नेक्स्ट 2 यूनिट रिप्रेजेंट किए 4, देन 1 2 3 4 बॉक्सेस लिए, आपके पास नेक्स्ट डिस्टेंस होगा 6। इसी तरह सोन करके यहाँ पे मैं 15 तक डिस्टेंस ले लूँगी, यहाँ पे 13 तक ले लूँगी। अच्छा, इसमें देखें जब हम 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अक्सर हमारी वैल्यूज़ ओड आती हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ओड वैल्यू किधर मार्क करें। तो आप देखो 2 और 0 2 के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस है, देखिए कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4, इसको डिवाइड कर दें 2 पे, आपके पास 2 बॉक्सेस बन जाएंगे, वहाँ पे आपका 1 आता होगा। इस तरह 2 और 4 के दरमियान 3 है, 3 एग्जैक्ट इनके मिड में आएगा, 4 बॉक्सेस का हाफ अगेन हमारे पास 2 होता है, यहाँ पे आप 3 मेंशन कर दें। इन शॉर्ट कि जब भी आपके पास 1 सेंटीमीटर के बाद 2 यूनिट्स हैं, तो अगर आप सारे मार्क्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी नंबर लाइन के ऊपर, तो आप ये सोच लें कि आपने 2 बॉक्सेस के बाद 1 2 3 करके, अगर आप कुछ भी स्किप नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से मेंशन कर लें, चाहे तो डायरेक्ट 2 2 के इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाएं, आपकी मर्ज़ी आप कैसे करवाएं, बस आपकी रीडिंग स्मार्ट किस तरह से होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे उसमें मार्क करके अपने लाइंस को शो करवा सके। ठीक है, तो मैं ओड वैल्यूज़ भी लेती हूँ, मेरी हैबिट है, मैं ओड वैल्यूज़ को ज़रूर साथ मेंशन करती हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी आप करें ना करें, बस डिस्टेंस नोट कर लीजिएगा कि आप कितना डिस्टेंस लें। ठीक है, तो मैं ये करके स्केल रेडी करके आपके पास आती हूँ। ओके जी, स्केल हमारा हो गया रेडी। अब हमने करनी है अपने ऑर्डर पेयर्स को पुट करना है, स्केल में मेंशन करनी है और हमने लेनी है वैल्यूज़। ठीक हो गया। सो फर्स्ट देखिए हमारा ऑर्डर पे क्या है कि जब हमारे पास -4 था तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई थी 30, -4 के साथ हमारे पास वैल्यू 30। स्केल रख लेते हैं, x की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू x की होती है तो -4 ये है, और 13 के सामने आपने करना होगा मार्क, 13 का पॉइंट यहाँ पे मार्क हो गया। फिर 0 है तो 5, 0 x का स्केल 0 है, यानी कि डायरेक्ट y की वैल्यू 5 है तो y के स्केल के ऊपर मार्क होगा। फिर 4 के साथ -3, 4 और इसके साथ हमारे पास वैल्यू है -3, यहाँ पे 3 हमारे पास पॉइंट्स मेंशन हो गए, इनको हमने ज्वाइन करना है। ज्वाइन इस तरह से करना है कि आपकी लाइन एग्जैक्ट इन पॉइंट से क्या करे, पास करे। ठीक है, लाइन ज्वाइन करते हैं आपने बहुत ध्यान रखना है, बच्चों की लाइन पास नहीं करी होती। मैं फिर क्योंकि कैमरे में प्रोमिनेंट दिखे मार्कर यूज़ कर रही होती हूँ, मेरे पॉइंट बहुत बोल्ड होती है। आप शार्प पेंसिल से जब ग्राफ बनाएंगे तो आपके पॉइंट्स बहुत नैरो पॉइंट्स होते हैं, छोटे पॉइंट्स होते हैं, पास करते हैं आपने ध्यान रखना है कि आपके पॉइंट्स उससे लाइन जो है उन पॉइंट्स को क्रॉस कर सकें। लाइन बनाने के बाद आप इसके ऊपर अपनी इक्वेशन मेंशन कर दें। हमारे पास हमारी इक्वेशन थी y = -2x + 5। मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब डिफरेंट पैटर्न्स को लाइंस को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो जो एग्जामिनर होता है, जो आपका टीचर होता है, उनको चेक करते पता होनी चाहिए कि ये जो लाइन है ये आपने किस फंक्शन की लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नोट कर लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट्स है। ओके जी, जो नेक्स्ट पॉइंट है टेबल के हमारे पास ये 3 पॉइंट्स, इनको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया ताकि पुट करते हुए हमें आसानी हो। अब हम इनको मार्क कर लेते हैं इधर। ओके जी, बिस्मिल्लाह। फर्स्ट हमारे पास है -4 to 15, -4 होगा तो होगा 0.15। स्केल इसलिए मैं रख लेती हूँ ताकि मेरी लाइन एग्जैक्ट उधर ही पॉइंट हो जहाँ पे मुझे पॉइंट करना, डॉट उधर पॉइंट हो। देन 0 और 3 है, x 0 और y 3 है, दैट्स मीन कि 3 के ऊपर एग्जैक्ट आपका मार्क होगा। यहाँ पे हमारे पास 15 की जगह 11 आएगा। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 8 + 3 हमारे पास कितने होते हैं 11, यहाँ पे मिस्टेक है, 11 आपके पास होगा। अब 11 से पुट करें। सेकंड पॉइंट हमारे पास 3 था, यहाँ पे 15 की जगह हमारे पास 11 -4 और 11, तो आप देखिए आपके पास 4 और 11 के हिसाब से मार्क लगाएं, यहाँ पे ये मार्क होगा। ठीक है, और ये आपके पास 3। अब देखिए जैसा मेरी मिस्टेक थी 4 पॉइंट पे लगाना है, सेकंड डॉट है आपके पास। अच्छा, जब आपकी लाइन में अगर स्केल में डिफरेंस आ रहा हो या मिस्टेक हो तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो उससे भी आपको क्लियर हो जाता है। जैसा मेरा 3 के साथ यहाँ पे था तो मुझे हो गया कि मेरी कोई वैल्यू पीछे से रॉन्ग है टेबल में, इसको मैंने रीचेक किया तो मेरे पास जहाँ पे ये वैल्यू आई कि यहाँ पे 11 था, 15 नहीं था। इसी तरह जो आप पॉइंट्स पुट कर रहे होंगे तो ये सारे ग्राफ्स आपके पास पैरेलल लाइंस ही बननी है।
अगर आपकी किसी जगह लाइंस पैरेलल नहीं है तो आप देख लें, इसका मतलब आपकी इधर रीडिंग्स में, स्केलिंग में, या जिस तरह भी यहाँ पे मेरे से होगी थी मिस्टेक, तो यहाँ पे किधर भी मिस्टेक हो सकती है, आप उसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 4 और -5। 4 और -5, 4 हमारे पास है यहाँ से, और हम ले लेते हैं 5 -5, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस लाइन को ज्वाइन करते हैं फिर से। हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इन पॉइंट्स को हमने करना है मर्ज। ये सेकंड पॉइंट था हमारे पास, क्योंकि मैंने डबल डॉट किए हुए, इसको मर्ज करना और अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है दैट इज़ -2x + 3, यानी कि y इज़ इक्वल टू -2x + 3 सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन के पार्ट्स के पास। थर्ड के हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं -4 और 4। हम अपने पास पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, 0 और -4, एंड जो थर्ड ऑर्डर पेयर है हमारे पास 4 और -12। ऑर्डर पेयर्स हमने इधर नोट कर लिए, अगेन इनको मेंशन करते हैं। हमारे पास फर्स्ट था -4 एंड 4। ठीक है, -4 और 4 का रिलेशन हमने इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन की हो रही होती है वहाँ से ज्वाइन करना है। -4 और 4 का यहाँ पे कंबाइन कर लिया। देन 4 एंड -4, 0 एंड -4, x 0 है, y का स्केल -4, एग्जैक्ट -4 के ऊपर मार्क होगा। फिर है 4 एंड 12, x का स्केल 12 है, 4 है, 4 के ऊपर स्केल रखें, और y के स्केल हमारे पास -12। -12 की लाइन के हिसाब से यहाँ पे क्या कर दें, मार्क कर दें। ये 3 पॉइंट्स हैं, अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं स्केल की हेल्प से। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने कर लिया ज्वाइन, और यहाँ पे इसकी इक्वेशन मेंशन कर देते हैं जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है दैट इज़ -2x - 4। सो y इज़ इक्वल टू -2x - 4। सो ये हमारे पास 3 फंक्शंस की, 3 इक्वेशंस की हमने लाइंस का पैटर्न ड्रॉ किया। पैटर्न हमारे पास पैरेलल लाइंस का है। एक फंक्शन अभी भी रहता है हमारे पास, उसको आप जब इन तीनों फंक्शंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर फोर्थ आपने खुद से ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम या कोई डिफ़िकल्टी फेस तो नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्केलिंग में इशू होगा तो स्केल बहुत ध्यान से लेना आपने। आपके पास वैल्यू की भी मिस्टेक हो सकती है, जिससे अभी एक वैल्यू मेरे पास रॉन्ग मेरे फाइंड की थी, फिर आपने जब इसमें पुट करना है, आप देखना अगर तो आपकी लाइन पैरेलल हो रही हुई तो उसका मतलब फिर बिल्कुल सही रीडिंग्स है आपकी। अगर पैरेलल नहीं हो रही तो एक दफ़ा दोबारा से काइंडली अपनी रीडिंग्स को रीचेक कर लीजिएगा, वहाँ पे तो कोई आपने मिस्टेक नहीं कर दी, और फिर इसमें वैल्यू पुट करके क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।